there can be categorization of reactions on the basis of relative position of living group and so the types are generally it can be one elimination. ठीक है. Also known as alpha elimination. This sort of eliminations generally produces, not generally, always produces gives carbene or nitrene type species. ठीक है. Example could be CHX3 in presence of strong base, maybe KOH, या फिर RO minus and slight heat. This is going to produce CX2. ठीक है. ये कार्बीन होता है. इस तरह के कार्बीन का प्रिपरेशन जो होता है that happens या that takes place through 1-1 elimination or alpha elimination. Fine. Further, there is 1-2 elimination also known as beta elimination. This leads to formation of unsaturated system. Or leads to formation की वजह leads to introduction of leads to introduction of unsaturation. It's an introduction of
unsaturation among molecules. ठीक है. एंड बाकी E1 E2 वो मैकेनिज्म्स जो देखने वाले हैं हम लोग, दे आर पार्ट ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ एलिमिनेशन. ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ एलिमिनेशन. सो दिस इज द की एलिमिनेशन टाइप जिसको इन्वेस्टिगेट करेंगे हम लोग थ्रू E1 E2 एंड E1 CB मैकेनिज्म. एग्जाम्पल्स उनके स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स में हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा. वैसे we can take one such example as suppose we have this one CH3 CDR CH3 CH3 in presence of OH minus and delta. OH minus and delta. We will have formation of this sort. ठीक है, तो दिस कैन बी एन एग्जांपल ऑफ अल्फा बीटा एलिमिनेशन. यहाँ पर क्या हो रहा है, Br इससे निकल रहा है, इस वाले कार्बन से, और H प्रोबेबली इस वाले कार्बन से निकल रहा है, द डॉटेड कार्बन एंड द स्टार मार्क कार्बन, और द ग्रीन कार्बन एंड द ब्लू कार्बन. ठीक है, is it okay? Yes, Or sir. apart from it, we also have higher degree or higher level eliminations. और higher level eliminations जहाँ भी होते हैं, that primarily takes place in order to produce cyclic compounds. For example, we can have 1,3 elimination, and it will be gamma elimination. ठीक है, और गामा एलिमिनेशन ये स्टैंडर्ड होता है. लाइक यू हैव दिस CH2 टर्मिनल अल्कीन्स जो होते हैं, इनके साथ ये रिएक्शन होता है. You put X and X and add Z into it, जिंक. ठीक है, जिंक को हम ऐड करते हैं, so the reaction which takes place is it simply cyclizes it. So there will be this CH2 CH2 and CH2. That will be the outcome. It can be 1 comma n elimination as well. The halides will be at the two terminals. ठीक है, you can have CH2X, CH2 unit being repeated n times, maybe n minus 2 times. ठीक है, such that total carbon count could become n. You apply Zn and you have similar cyclization over here as well.
CH2 n times CH2 CH2, ठीक है. Is it fine? तो किस रिलेटिव पोजीशन से एलिमिनेशन हो रहा है, that is one thing which is going to help us, I mean, um, determine the product. 1 3 हायर एलिमिनेशन से हमेशा हमको साइक्लिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं. 1 2 एलिमिनेशन से अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं. एंड यहाँ पर हम लोग एक्चुअली नोट में डाल सकते हैं और हायर ऑर्डर एलिमिनेशन लाइक 1 3 elimination or above leads to formation of cyclic product. Leads to formation of cyclic product. ठीक है. Is it okay? Now we will move into to point A, unimolecular elimination E1 mechanism. ठीक है. तो यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन E1 मैकेनिज्म का बेसिस क्या था? Which one is going to leave first, the proton or the living group? Leaving group. The living group has to leave first. So the living group has to be Good living group. it has to be a good living group. Apart from that, what should be the nature of base? क्या लगता है कैसा होना चाहिए? Weak. Should it be a strong base or weak base? Relatively weak base. वीक रहना चाहिए. उससे क्या होगा? What will happen from it? अगर वीक रहेगा तो लिविंग ग्रुप के डिपार्ट होने के बाद प्रोटॉन का एक्सट्रैक्ट करेगा. राइट. सो दो की चीजें तो हमको पता चल गई. तीसरी की चीज क्या होगी? सॉल्वेंट का नेचर हमको कैसा चाहिए? यूनिमॉलिक्यूलर अगर चीजें हो रही है, एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में. SN2 जैसे यूनिमॉलिक्यूलर जब हो रहा था तो इट वाज बिकमिंग बाई स्टेप प्रोसेस. ठीक है. इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा था और इंटरमीडिएट से फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था. द मोमेंट थिंग्स बिकम यूनिमॉलिक्यूलर, मतलब एक इंटरमीडिएट बन जाएगा और वही इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन जो होएगा, दैट इज समथिंग
जो कि मोस्टली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होएगा। हाँ ठीक है, rate determining step is going to be the formation of that particular intermediate, ठीक है, और इंटरमीडिएट से फाइनल प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन रहेगा दैट इज गोइंग टू बी अ फास्ट स्टेप, दैट इज गोइंग टू बी रिलेटिवली फास्टर स्टेप। एक सेकेंड जो होता है सॉल्यूशन गेट सॉरी सॉरी उल्टा बोल गया, नहीं उल्टा बोल गया। इंटरमीडिएट जो फॉर्म होता है, इंटरमीडिएट एक फॉर्म होएगा एंड आई से जो एलिमिनेशन होएगा, H माइनस डी प्रोटोनेशन होएगा, दिस इज गोइंग टू बी द RDS, ठीक है। ओनली इंटरमीडिएट विल बी इन्वॉल्व और unimolecular concentration of intermediate is going to determine okay, let me put out an example and then we will discuss in perspective. See, CH3 CH3 and Br in presence of MEO minus MEO minus and delta will lead to formation of CH3 CH double bond CH2. The steps are: step 1 CH3 CH Br CH3, under influence of solvent या फिर you can use a single word due to solvation. Self discharge of Br, the living group takes place, and it will lead to formation of this particular thing, carbocation. CH3. This is our intermediate. Once this is formed, then our step 2, and this is going to be our RDS. सही बोल रहा था, दिमाग में जो आया था मेरे सही था. I was actually looking at another diagram. तो इवन सीबी के डायग्राम को मैं देख रहा था तो मुझे गलती से लगा कि गलत बोला क्या मैंने. Then we have CH plus CH3, or there can be a base like this MEO minus, slightly good base, and under the due to solvation and थोड़ा सा heat भी हम यहाँ पर इसको provide कर रहे होंगे. That is going to be another helpful reason in order to make this bond weaker and separate it.
सो एक सॉल्वेशन हमारा असिस्टेंट होता है और दूसरा हीट जो होता है हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं डेल्टा, वो हमको इस बी आर को सेपरेट करने में यहाँ पर हेल्प करता है। और MEO minus and the proton will be extracted and there will be formation of CH3 CH double bond CH2, okay? Plus obviously MeOH will get formed. Now, it's a two-step process. The energy profile is going to look something like we have reaction coordinate, then we have energy profile, energy coordinate. This energy coordinate can be simply written as E potential energy or maybe delta G also. ठीक है. So the journey will start something like this. You will have a reactant over here, maybe Rx. This Rx will first form a transition state, then get converted into an intermediate known as Rx plus. So this will be our intermediate R plus, the carbocation, and then further we will go up and down like something like this. This time the product will not come down like substitution products. Remember, substitution में ये ग्राफ नीचे की तरफ आता है क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये वाला प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है दैट इज मोर स्टेबल. याद है प्रोफाइल डायग्राम इसका बाय एनी चांस? हाँ सर. ठीक है, बहुत छोटी चीज है बट कैन बी अ पॉइंट टू बी आस्क्ड इन क्वेश्चन. आइडेंटिफिकेशन के लिए बोल देंगे which graph corresponds to substitution reaction. Energy coordinate या energy diagram graph corresponds to elimination or which one corresponds to substitution. ये ऐसा क्यों होगा? Endothermic reaction होता है elimination, reactant या product is going to be less thermodynamically less stable नहीं बोलेंगे, thermally less stable होता है. ठीक है, thermodynamically नहीं, thermally less stable होता है. बात समझ में आ रही है? डेल्टा एच हाँ सर. पॉजिटिव रहेगा. सो बी केयरफुल. मतलब ये छोटी चीजें हैं, ध्यान में रखेंगे हम लोग. मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ. द पॉइंट इज आजकल थोड़े से ऐसी चीजों को लेकर के दे हैव बिकम मोर इंटरेस्टेड. ठीक है, छोटी छोटी चीजें उठा करके पूछ रहे हैं, उस पर एग्जाम्पल जो होते हैं वो पूछ लेते हैं. एग्जाम्पल्स पूछ लेते हैं और ये एग्जैक्टली भी पूछ सकते हैं. अबे किस बात की पार्टी? एक और पार्टी. वो MHCET वाला रिजल्ट की. अच्छा, MSCET वाले रिजल्ट की. ओके ओके, ठीक है. खुलने तो दे, खुलेगा फिर सब पार्टी मिल जाएगा तुमको.
सबका एक कंबाइंड पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर इट इज गोइंग टू बी, एक्चुअली इसको RX नहीं लिखते हैं और ये ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको ये वाला ही लिख देते हैं, नहीं तो अल्कीन यहाँ पर बना नहीं पाएंगे हम ना। Transition state 1, transition state 2, and then you have final product, alkene or unsaturated system. The first step is RDS, separation of living group. Solvation के through होना है. The bond detachment has to take place through solvation. So what kind of solvent can we expect over here? Step 1 में किस type का solvent हम लोग expect कर सकते हैं, which will help us in what should I say? Detaching the Br, the halide, and leading to formation of the intermediate. What type of solvent can we expect? ठीक है, RDS है मतलब एक्टिवेशन एनर्जी इसका ज्यादा है, ये चीज ध्यान में रखेंगे हम लोग। एंड क्योंकि ये RDS है, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है मतलब एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है हमारी, ठीक है। सो व्हाट काइंड ऑफ सॉल्वेंट कैन वी प्रेफर और व्हाट काइंड ऑफ सॉल्वेंट डू वी रिक्वायर? कुछ एक्सपेक्टेशन आप लोग लगा सकते हैं किस तरह के सॉल्वेंट में ज्यादा एनर्जी मिलती है हम लोग को, किस तरह के सॉल्वेंट सॉल्वेशन के टाइम पर ज्यादा एनर्जी देते हैं? हम्म सबसे ज्यादा एनर्जी किस टाइप के सॉल्वेंट्स या किस टाइप का सॉल्वेशन जो है वो देता है? यार बचपन से पढ़ा रहा हूँ मैं, सॉल्यूशंस में पढ़ाया तुम लोगों को, एनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया तुम लोगों को। इस उम्मीद के साथ कि जब यहाँ पर जरूरत पड़ेगी तो आप लोग को ध्यान में रहेगा। पोलर सॉल्वेंट चाहिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए? सॉल्वेशन एनर्जी किस में ज्यादा होती है, पोलर में नॉन पोलर में? या सॉल्वेशन एनर्जी किस में ज्यादा मिलती है, होती है नहीं मिलती है? हाँ जी, सो गए हम लोग? जागो मोहन प्यारो। हम्म हम्म, This process proceeds via formation of carbocation. Therefore, rearrangement of carbocation for greater stability rearrangement
कार्बोकैटायन for better stability may take place, or do take place, rather it's not may take place. For better stability, do take place before elimination of, or we can say directly elimination of proton के बदले deprotonation, before deprotonation. ठीक है, यहाँ तक की चीजें इज इट ओके? हाँ सर। वेरी गुड। एक सेकंड रुक जाओ, काम है। ये दूध रंग, ओके। अच्छा ये बताओ, इस वाले प्रोसेस में हाइड्रोजन को अगर ड्यूटेरियम से हम चेंज कर देंगे, विल इट इफेक्ट आवर रेट ऑफ द रिएक्शन? करेगा तो कितना करेगा, ज्यादा करेगा कम करेगा? हेलो, हेलो। सर। हाँ, इस हाइड्रोजन को अगर हम लोग ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दें, इसको या ये तीनों को रिप्लेस कर दें, will rate of reaction be different from normal rate of reaction or not? और डिफरेंस जो होएगा वो किस लेवल का होएगा? अगर होता है तो, नहीं होता है तो कोई बात ही नहीं है, राइट? हाँ जी सर, लोग बताएंगे क्या? हम लोग शुभम के अलावा कोई और ट्राई करने की कोशिश करेगा? स्टेप्स में प्रोसेस क्या हो रहे हैं? यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है ना, दिख रहा है? यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है तो ये वाला दूर चला जा रहा है, छिटक जा रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, ये पूरी तरह से बाहर चला गया। फिर उसके बाद अगले स्टेप में ये प्रोटॉन बाहर निकल रहा है, और फिर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। प्रोटॉन के बाहर निकलते के साथ साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, रेट किस चीज पर डिपेंड कर रहा है?
इस हाइड्रोजन के टूटने पर डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं। नहीं कर रहा है ना? बाकी लोगों को दिख रहा है या सारे लोग सो रहे हैं? हाँ जी दिख रहा है। वेरी गुड। तो दिख रहा है तो दिमाग भी खोलिए, ठीक है। अगर इस हाइड्रोजन का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन रेट डिटर्मिनेशन में नहीं है तो रेट के ऊपर बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होगा। पॉइंट ये है कि कुछ भी इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, ये अगर डिटरमाइन करना हो तो क्या करेंगे? व्हाट थॉट विल बी टेक प्लेस, विल कम इनटू योर माइंड? विल देयर बी, मतलब देखो सिग्निफिकेंट तो नहीं होगा, ये क्लियर हो गया, क्योंकि इसके ऊपर रेट डिपेंड नहीं कर रहा है। दिस इज नॉट द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये डिटैचमेंट इज नॉट द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो सिग्निफिकेंट चेंजेस तो नहीं आएंगे। विल देयर बी सम चेंजेस और नॉट, या कोई भी हाँ चेंज नहीं सर, होएगा? होंगे चेंजेस। चेंजेस होएगा। क्यों चेंज होएगा? कार्बोकैटायन को स्टेबल करने में भी हेल्प करेंगे। कार्बोकैटायन को स्टेबल करने में हेल्प करेगा, नंबर 1। और क्या? वो तो ये फॉर्म हो गया तो इसकी वैल्यू को थोड़ा सा नीचे ला देगा, दैट इज फाइन, दैट आई अग्री विथ। और क्या? ये तो ठीक है, फेवरेबल हुआ, बट वो अनफेवरेबल चीज भी एक करता है। ये एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाएगा, थोड़ा सा रेट को कम करेगा, बट सिग्निफिकेंटली कम नहीं करता है। यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? दैट इज व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड। बेवकूफों, इनर्शिया फैक्टर की वजह से करेगा, सामने रहते थप्पड़ से मारता मैं। इसका इनर्शिया फैक्टर बढ़ेगा ड्यूट्रियम के आने की वजह से। काइनेटिक्स में बताया था मैंने आखिरी में। हाँ सर। इसका ये इनर्शिया फैक्टर बढ़ेगा ना। इनर्शिया फैक्टर बढ़ेगा तो द अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन विच वाज रिक्वायर्ड will eventually increase, या सेम टेम्परेचर पर सेम लेवल ऑफ वाइब्रेशन नहीं मिल पाएगा हमको जिससे कि ये बॉन्ड ब्रेक कर पाए, तो थोड़ा और ऊपर लेकर के जाना पड़ेगा, दैट इज इनर्शिया फैक्टर। बट वो इम्पैक्ट सेकेंडरी रहेगा। क्यों सेकेंडरी रहेगा? क्योंकि दैट बॉन्ड इज नॉट इटसेल्फ गेटिंग ब्रोकन, ठीक है। आरडीएस में वो बॉन्ड खुद नहीं ब्रेक हो रहा है, इसकी वजह से उसका इफेक्ट जो होगा दैट वोंट बी वेरी डायरेक्ट इफेक्ट, दैट विल बी अ सेकेंडरी इफेक्ट, ठीक है। एम आई मेकिंग सेंस? बात दिमाग में घुसी हम लोगों के? हेलो? हाँ सर, समझा। हाँ सर। सारे लोगों को समझा? हाँ सर। वेरी गुड। सी, आप लोग को सोचना पड़ेगा, ऐसे लेमैन की तरह आप लोग बैठ करके और क्लास नहीं अटेंड कर सकते हैं। आई विल नॉट लाइक दैट, यू विल हैव टू पार्टिसिपेट। और देखो, मतलब काइनेटिक्स अगर पढ़ रहे हैं तो आपको एक बार अपने मतलब मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं तो यू हैव टू गो थ्रू द काइनेटिक्स वाला चैप्टर एक बार, मतलब पूरे डिटेल में नहीं, बट हाँ एक बार रिवाइज कर लो, आखिरी की चीजें एक बार स्पेशली पढ़ लो, दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। उससे आप इसके आंसर्स कर पाओगे, और वो करना जरूरी है। वो अगर उसमें पार्टिसिपेट अगर आपने नहीं किया तो फिर मुझे गुस्सा आते रहेगा ऐसे ही, ठीक है। इनफैक्ट सॉल्वेंट चैप्टर को थोड़ा सा देख सकते हो, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी हेल्पफुल, स्पेशली जहां पर वो बॉन्डिंग पैटर्न एंड सॉल्वेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है, दैट इज समथिंग व्हिच विल बी हेल्पफुल इन आंसरिंग दीज क्वेश्चंस। ये सारे वहीं से, और वहां पे पढ़ाया हुआ है, इसी से मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ वेदर यू आर एबल टू कनेक्ट इट और नॉट। तो आप तो कनेक्ट कर नहीं पा रहे हो, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। सब खा पी करके
खत्म कर दिया है तुम लोगों ने. That's not done. Okay. So a rearrangement of carbocation can take place before formation of final product. As the detachment, as in departure of and deprotonation is not part of deprotonation is not part of RDS. Therefore, the hydrogen isotopic effect is of secondary nature. That is, there will be very slight effect on rate of reaction if hydrogen is replaced by deuterium. ठीक है? That means KH by KD will be is actually it should be small kh by small kt is slightly greater than 1. This happens due to greater inertia of deuterium. Is it okay? Very good.
7 point. Okay. Uh, this process देखो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, सॉल्वेंट वगैरह के साथ ये हाइड्रोजन एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वो इसके अंदर होने की किसी तरह की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। कुछ और प्रोसेस टाइप्स आएंगे जिनके अंदर हाइड्रोजन एक्सचेंज की पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, और जैसे जब लिविंग ग्रुप बाद में डिपार्ट करेगा, ठीक है, तो सिस्टम हमारा कैसा हो जाएगा? अगर ध्यान से सोचोगे, the system will happen to be something like this, a carbanion अगर H प्लस पहले डिपार्ट कर गया और L माइनस बाद में डिपार्ट कर रहा है, तो what will happen? The negative thing will form, the carbanion will form, and this carbanion will have a tendency to extract proton from solvent, whatever solvent is there, maybe this, maybe ROH. Am I right? बात समझ में आ रही है? अब मजेदार चीज ये है कि सपोज हमारे पास ये प्रोडक्ट होता है, रिएक्टेंट होता है और H और यहाँ पर फ्लोरीन है, ठीक है, और यहाँ पर हमने डाल दिया हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है ना, और इसको हमने ट्रीट कर दिया अल्कोहल से, अल्कोहल सॉल्वेंट के अंदर ROD या फिर D2O, ड्यूट्रियम ऑक्साइड, हेवी वाटर, राइट, इसमें सॉल्वेट किया या फिर इसमें सॉल्वेट किया। तो द इंटरेस्टिंग थिंग विच विल टेक प्लेस इज you might tend to get 3 different products in it, ठीक है, it will be HCH double bond CHH, this will be one product. The other product could be HCH double bond CDH, and the third product could be HH double bond CDD, ठीक है, and the most interesting part is, do you know which one will be the what should I say, which one will be the मेजर प्रोडक्ट? ठीक है, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होएगा? एनी गेसेस? ये भी, इसके भी फनी आंसर्स होंगे, मतलब फनी नहीं, इंटरेस्टिंग आंसर्स होंगे। शॉर्ट टर्म में ये रहेगा मेजर प्रोडक्ट, लॉन्ग टर्म में ये रहेगा मेजर प्रोडक्ट। सिंपली पूछा जाता है आपसे कौन सा मेजर प्रोडक्ट रहेगा, वी आर आस्किंग अबाउट लॉन्ग टर्म, ठीक है। स्पेसिफिकली पूछा जाएगा कौन सा रहेगा शॉर्ट टर्म में, तो ये आंसर होगा, अदरवाइज ये आंसर होगा। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, राइट? कैसा लगा? enjoyed it? We will discuss it in next 2 mechanisms, actually third वाले में। So this is possible and this is called solvent effect, ठीक है, और exchange of proton from solvent, this can take place very easily. So in this sort of mechanism, there will not be any
deuterium exchange with solvent. ठीक है. So no primary isotopic effect. There will be only secondary isotopic effect. There is not going to be any exchange of deuterium. No exchange of deuterium from solvent. No deuterium exchange with solvent. Furthermore, let us talk something about the reactivity. अभी इंटरमीडिएट अगर मेरा कार्बोकैटायन बन रहा है तो एक्टिवेशन एनर्जी का ऑर्डर जो है ज्यादा या कम, और ये हमारे सबस्ट्रेट के ऑर्गेनाइजेशनल फीचर या स्ट्रक्चरल फीचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा. स्ट्रक्चरल फीचर का मतलब क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर, राइट? बॉन्डिंग पैटर्न बिटवीन कार्बन्स. Am I making sense? तो एक्टिवेशन एनर्जी जो होगा, एक्टिवेशन एनर्जी 1, उसकी वैल्यू स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ सबस्ट्रेट से कंट्रोल्ड होगा कि नहीं होगा, या रिलेटेड होगा एटलीस्ट कि नहीं होगा. व्हाट इज आवर एक्सपेक्टेशन? देखिए, होगा सर. वेरी गुड. अच्छा, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछते हैं. कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री रहेगा तो स्टेबिलिटी ऑर्डर डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा? हाँ जी. अच्छा, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग आंसर नहीं करेंगे. वेरी गुड. कल से मैं नोट्स लिख के आऊंगा और सिर्फ खोल के रख दूंगा, आप लोग नोट कर लेना. ठीक है. ओ, use this mechanism proceeds with formation of carbocation. Therefore, reactivity therefore structural pattern of substrate
plays significant role in determining order of activation energy required required the rate of reaction ठीक है potential energy of carbocation 3 degree is least followed by 2 degree followed by 1 degree stabilization due to hyperconjugation ठीक है therefore activation energy or EA is going to follow the order 3 degree is going to have least followed by 2 degree followed by 1 degree substrates and therefore your rate of reaction or a rate constant of the reaction or rate constant ठीक है ये का चेंज होना रेट कांस्टेंट को चेंज करता है एंड देयरफॉर रेट ऑफ द रिएक्शन गेट्स चेंज्ड याद है गुड so rate of reaction is going to be it's going to follow other way around 3 degree will be fastest moving followed by 2 degree followed by 1 degree ठीक है Okay. One ninth point is
इन दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? एनी गेसेस? हेलो, तो सेम होगा। दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन सेम होगा? क्यों? कार्बोकेटाइन सेम बनेगा। क्यों? ए में रीअरेंजमेंट भी हो सकता है ना। हाँ, ए में रीअरेंजमेंट होएगा तो रीअरेंजमेंट में टाइम लैग नहीं होएगा। रीअरेंजमेंट होएगा तो रीअरेंजमेंट में टाइम भी लगेगा ना, कि नहीं लगेगा? क्या लगता है, लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। लगना चाहिए। सो व्हाट्स आवर टेक? यहाँ पे ऊपर में दिया हुआ है, इसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा, पहले वो रीअरेंज हो करके 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा, रीअरेंज हो करके। ठीक है, डायरेक्टली नहीं बनाएगा। और ये डायरेक्टली 3 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का कम होगा और 2 डिग्री का ज्यादा होगा। ठीक है, तो पहले ये हमेशा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा और ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा। तो रेट वाइज दिस इज गोइंग टू बी फास्टर और दिस इज गोइंग टू बी रिलेटिवली स्लोअर। ठीक है, अब रही बात कि प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा इससे। फॉर्चुनेटली ऐसा है कि दोनों ही केसेस में यू आर गोइंग टू गेट सेम प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें भी मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा तुम्हारा वो यही बनेगा। इट्स गोइंग टू बी Me मतलब CH3, Me मतलब CH3 Me डबल बॉन्ड CMe एंड H। ठीक है, और यहां पर भी सेम चीज बनेगा, MEH Me एंड Me। तो यहाँ पर ये चीज डायरेक्ट बन जाएगा और यहाँ पर कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट से ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ए और बी में प्रोडक्ट दोनों में सेम बनेगा। दिस कुड बी अ वेरी क्लासिक क्वेश्चन, जेई मेंस टाइप का। ये काफी एक अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, आपसे रेट एनालिसिस करने के लिए पूछ लेगा। और दिस इज समथिंग विच इज एप्लीकेटिव पार्ट ऑफ द सेम थियरी। थियरी वही है, उसका एप्लीकेटिव पार्ट ये है।
Are we getting this point? हाँ सर। समझ में आ रही है बाकी लोगों को? हाँ सर। ठीक है, गुड क्वेश्चन, ये नोट कर लो। इट इज अ गुड क्वेश्चन, मतलब गुड क्वेश्चन एज इन जस्ट ऐसे ही सोचा कि सारे लोग सो रहे थे तो सोचा मैंने कि कुछ पूछ लेता हूँ, पूछते पूछते में लगा यही पूछ लेता हूँ। Still it can be a good question, you guys can note. वेरी गुड। 8 नंबर पॉइंट तक लिखवाया था ना, 9 नंबर पॉइंट है। एक क्वेश्चन और पूछनी हो क्या? तो इसमें एक और क्वेश्चन पूछूं, एक और स्ट्रक्चरल पैटर्न जस्ट मेरे दिमाग में आया। देखो 1 2 3 4 ऑर्डर्ड है, ठीक है ना? इनके रिएक्शन रेट को 1 2 3 4 ऑर्डर्ड हैं ये चार, और इनके रिएक्शन रेट को ऑर्डर करना है आपको, रेट ऑफ रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन को। कैन वी डू दैट? एक मिनट दे रहा हूँ तुम लोगों को, तुम लोग सोचो, फिर आई विल बी कमिंग बैक एंड आस्किंग। 2 मिनट दो सिर्फ। अरे यार रिज्यूम रिकॉर्डिंग नहीं किया, आंसर रिकॉर्ड नहीं हुआ, फिर से बोलना पड़ेगा। ओके, द कार्बोकेटायन being formed from 1 and 3 are respectively these two carbocations, ठीक है? Now the right hand segments are common, the methyl segment is common, so the inductive effect through these two will be exactly same. However, the inductive effect from left side substituent will be different. The plus side due to the the substituent on the left in first structure, or the intermediate formed from first substrate will have greater plus I effect in comparison to the left substituent in the intermediate formed from third substrate, ठीक है? On account of having a sp2 hybridized carbon which has greater electronegativity compared to a sp3 hybridized center. Therefore, the inductive effect due to this segment
will get slightly lesser compared to the inductive effect because of the left substituent on intermediate 1 formed from substrate 1. Okay, and therefore the stability of this green marked intermediate will be higher compared to this orange marked intermediate, and so will be the reaction rate. ठीक है, यहाँ पर पॉइंट ये नोट कर लेंगे हम लोग कि द रिएक्शन रेट depends on EA of first intermediate formed and not on stability of rearranged intermediate. ठीक है, is it okay? नोट कर लिया हम लोगों ने? हाँ सर। वेरी गुड, रिकॉर्डिंग को करते हैं